Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video I will discuss about cooperative societies because this was in news for two reasons. One, recently Union government has created Union Cooperative Ministry, and second, the Supreme Court of India has struck down 97th Constitutional Amendment Act that is associated with cooperative society in India. Friends, in this video I will discuss about what is cooperative societies, how cooperative societies can be created, different types of cooperative societies, constitutional and legal position with respect to cooperative societies in India, and the recently created Ministry of Cooperative Society, what is the purpose of that cooperative society, and finally Supreme Court struck down 97th Constitutional Amendment Act 2011. उन्होंने ये ऐसा क्यों किया, इसे भी डिस्कस करेंगे. Friends, to know all these aspects, watch till the end of the video. For online video course or live interactive classes, join panishatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panishatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Now, what is cooperative? Basically, cooperative is autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural need, aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprises. This is the definition of a cooperative. And the cooperative society basically is an association of persons who voluntarily pool their resources and carry on the business of their own welfare. Meaning thereby कुछ लोग खुद इकट्ठे होते हैं और अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने लिए अपने आप को बेटर कर सकें, अपनी पोजीशन को अच्छी कर सकें इकोनॉमिक में. कहते हैं ये एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इन विच जो मेंबर्स होते हैं वही ऑनर्स होते हैं, जो इसमें मैनेजर टू क्लर्क सब उस संस्था के मेंबर होते हैं. बेसिकली फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बेटर और मिडिल पोजीशन माना जाता है बिकॉज ऑफ लेथार्जिक PSUs एंड प्रॉफिट सेंटर्ड प्राइवेट सेक्टर के बीच में. तो इसीलिए इसको सरकारों ने प्रमोट भी किया. अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आपको समझ में आएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मूवमेंट है दैट हेल्प लॉट ऑफ इन अपलिफ्टिंग द पुअर फ्रॉम द पॉवर्टी. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर आप देखो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं कई तरह से बनाई जा सकती हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ये अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं. जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये वो लोग बनाते हैं जो बल्क में सामान अपने लिए खरीदते हैं. प्रोड्यूसर ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए खुद सामान बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, जैसे आपका अमूल हो गया. अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कैसे बना सकते हैं. बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिनिमम 10 लोग जो कि वॉलंटरली दे कम फॉरवर्ड फॉर कॉमन कॉज, और वो अपनी सोसाइटी को चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1912 या स्टेट स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स में रजिस्टर कर सकते हैं. और वो लोग एक ही रेजिडेंट, एक ही लोकेलिटी के होने चाहिए. बेसिकली the basic idea is that all person intending to form society should have a common objective to achieve. ये बेसिकली एक तरीका होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए. अगर आप देखो हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर तो इंडिया देयर आर मोर देन 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसमें 28 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है और डिफरेंट 55 टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं आपके देश में. अगर आप उनको मेजरली
7 to 8 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये बेसिकली अराउंड 1,50,000 मिल्क प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे अमूल है, आपका वेरका है। कहता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये अपने ही लोगों को क्रेडिट देती हैं, अराउंड 95,000 ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अराउंड देयर आर 1 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आपस में क्रेडिट अपने मेंबरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। बेसिकली सदर्न इंडिया में यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे वीवर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो अपने ही मेंबरों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सच कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इन न्यूज़, दैट इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर रॉन्ग रीजन, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल गड़बड़ियों की वजह से उस पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो कि घर बना के अपने मेंबरों को देती हैं। उसी तरह से फ्रीलांस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप होते हैं। अब बेसिकली एक सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है वॉलंटरी बेसिस, मेंबर्स डू कम वॉलंटरली एंड दे स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। खुद मेंबर जो हैं आते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुरू करते हैं और सभी मेंबरों के बराबर राइट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। आप किसी के जैसे कंपनी फॉर्म में क्या होता है, किसी के शेयर ज़्यादा है तो उसके वोटिंग राइट ज़्यादा होते हैं, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। 1 मैन 1 वोट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और डेमोक्रेसी नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, क्योंकि मेंबर जो हैं डेमोक्रेटिकली दे टेक डिसीजंस। ऑनेस्टी नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ऑनेस्टी बेसिस पर तो ही हर चीज़ चलता है, तो इसमें भी ऑनेस्टी एक मेजर प्रिंसिपल माना जाता है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, मेंबर्स का आपस में जो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है, एक दूसरे की कोऑपरेशन होती हैं, दीज आर द मेन प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर आप देखो इन इंडिया व्हाट आर द मूवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो बेसिकली अगर हम प्री इंडिपेंडेंस से देखें तो विद सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन यूरोप, ब्रिटिश गवर्नमेंट रेप्लिकेटेड दिस मूवमेंट इन इंडिया। इनिशियली जो लोग थे, खासतौर पे फार्मर्स थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मनी लेंडर्स बिकॉज दे वर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स ये लोग चार्ज करते थे। और उन लोगों ने यहीं से कोऑपरेटिव मूवमेंट भी जो अहमदनगर, पुणे यहाँ पर शुरुआत हुई। और इसके फोर्स के बाद सरकार ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे इनेक्टेड 3 लॉज, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879, लैंड इंप्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 एंड एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1884। ये 3 लॉ दे इनेक्टेड सो दैट द रिलीफ कुड बी एक्सटेंडेड। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्री इंडिपेंडेंस टाइम में पहली बार फर्स्ट टाइम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई बैंकिंग इन 1903 में, और दिस वाज रजिस्टर्ड अंडर फ्रेंडली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत जो अंग्रेजों की थी। और उसके बाद से फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1904 बना और उसके बाद ये मूवमेंट तेजी से चलता रहा। समय आया 1919 का, सो मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड जो एक्ट था 1919 का, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर रखा गया एंड दिस प्रोविजन वाज फर्दर कंटिन्यूड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को 5 ईयर प्लान्स में एक इंटेग्रल जगह दी गई एंड इन 1958 में जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भी नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए ताकि इसको फर्दर डेवलप किया जा सके। इन 1984 सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, दैट वाज अमेंडेड अगेन इन 2002। इस तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर कई लॉ बनाए गए। फर्दर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और इंपॉर्टेंस देने के लिए इन 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट ने संविधान के अंदर एक चैप्टर दैट इज 9B फ्रॉम आर्टिकल 243ZS टू 243ZT तक ऐड किया गया और 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल C में द वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया। इसका यह मतलब हुआ कि नाउ दिस हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज यू हैव राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशंस। उसी तरह से वन मोर आर्टिकल वाज एडेड in directive principle of state policy. In directive principle of state policy, article 43B was added and this give direction to the state to promote cooperative society movement in India. This is the constitutional position
with respect to cooperative societies in India. Now, what are the law that governs cooperative societies in India? Basically, cooperative society are state subject and states are empowered to enact laws. And with respect to multi-state cooperative societies, it falls under the jurisdiction of central government. They can enact on multi-state cooperative matter. There are different state laws जो कि अपने अपने स्टेट के अंदर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको रेगुलेट करते हैं। और अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 रिसेंट अमेंडेड इन 2012 के तहत रेगुलेट होता है। बेसिकली जो डेयरीज हैं, जब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जब शुगर मिल्स हैं, जो कि दे कम अक्रॉस मैनी स्टेट्स, तो इनको सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो रेगुलेट करती है। लॉ तो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार के ही लगते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी जो है स्टेट रजिस्ट्रार को दी गई है। क्वेश्चन आ जाता है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जब संविधानिक स्टेटस दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसका क्या मकसद था? बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ द डे वांटेड टू गिव मोर पुश टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट इन इंडिया, ताकि जो लोग हैं वो डेवलप कर सकें थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और पॉवर्टी खत्म हो सके, लोग इकोनॉमिकली वायबल बन सकें, आपस में मिलकर अपने ग्रोथ कर सकें। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि एनीवन हैज़ राइट टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दूसरा, स्टेट की जिम्मेवारी भी दी गई 43B अंडर DPSP कि स्टेट इसको प्रमोट करेगा। और संविधान में म्यूनिसिपैलिटी के बाद पार्ट 9B ऐड किया गया फ्रॉम आर्टिकल 243ZH टू 243ZT तक ऐड किया गया। अब सवाल आ जाता है कि इन आर्टिकल्स में क्या लिखा जाता है। अगर आप देखो तो इन आर्टिकल्स में अंडर 43ZI ये लिखा गया है कि द स्टेट शैल मेक रूल्स रेगुलेशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करने के लिए स्टेट कंसर्न लॉ बनाएगा। आर्टिकल 243ZJ में लिखा हो गया है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिस बियरर्स के बारे में। कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कैन इनेक्ट द मैक्सिमम लिमिट्स एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स नॉट मोर देन 21 डायरेक्टर्स, यानी कि 21 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रिजर्व सीट्स फॉर SC, ST एंड 2 सीट्स फॉर वुमेन अंडर आर्टिकल 243ZJ। अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल पे देखो 243Z के, तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। कहता है स्टेट शैल मेक लॉ फॉर इलेक्शन ऑफ द बोर्ड एंड विद इन 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ बोर्ड जो है इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। 243ZL में अबाउट सुप्रेशन सस्पेंशन ऑफ बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट के बारे में लिखा है। कहता है स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को सस्पेंड नहीं कर सकता अगर बोर्ड के कामकाज में गड़बड़ियाँ नहीं हैं, अगर बोर्ड के जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो सस्पेंड नहीं कर सकते। 243ZM में अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि द स्टेट शैल मेक सच प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अबाउट देयर ऑडिट। इन 243ZN में लिखा हुआ है कन्वीनिंग ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बेसिकली हर साल एक बार जनरल मीटिंग बुलाने का प्रावधान आपके संविधान में लिखा गया है। एंड आर्टिकल 243ZO में राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी मेंबर चाहे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज में। इसी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो पार्ट दैट अप्लाइज टू स्टेट खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अंडर शेड्यूल 7 शेड्यूल लिस्ट 2 एंट्री नंबर 32 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लिखा गया है, और ये यहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है जो लॉ बना सकती है। मगर जो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बनाया गया है बिना स्टेटों के रेटिफिकेशन से बनाया गया है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और देखो तो कुछ संविधान में ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, तभी वो संविधान लागू होता है। जैसे कि आपने पीछे देखा होगा GST जब इन्होंने बनाया तो 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन करवाई, मगर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बिना स्टेट की रेटिफिकेशन से बनाया गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो पार्ट जो स्टेट पर लागू होता है वो इनवैलिडेट कर दिया, यानी कि अब वही पार्ट लागू होगा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है।
Moving on our next question, recently Union government has created cooperative ministries और ये मिनिस्ट्री एक टावरिंग लीडर अमित शाह के अंडर रखती है। एंड इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का क्या काम है? बेसिकली इस कोऑपरेटिव मिनिस्टर का काम है टू प्रमोट कोऑपरेटिव एक्टिविटीज इन द कंट्री। ये मकसद है। इनका एक नारा है सहकर से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव, और इस स्लोगन को और दूर तक ले जाने का काम ये मिनिस्ट्री करेगी। आपके देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और प्रमोट का काम करने का जिम्मा इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया है। लेकिन अब जब ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया है, अब इसका असर क्या है इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब स्टेटों को जबरदस्ती नहीं कह सकती कि दे मस्ट अलाइन देयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये नहीं कह सकते, और ना ही अब किसी भी तरह के डायरेक्शंस जारी हो सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन संविधान को अमेंड करे और नए फीचर्स के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज संविधान में इंसर्ट करे। ये हल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली जो देश में जो गरीब हैं उनके अपलिफ्टमेंट में एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना जरूर चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिग्निफिकेंस को देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज इन इंडिया। बेसिकली अगर 2019-20 का डाटा जो हमारे पास है अगर देखें तो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैड प्रोक्योर्ड 4.80 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम 1.7 करोड़ मेंबर्स and had sold 3.7 crore liters of liquid milk per day. This is the data what National Dairy Development Board has provided. अगर आप देखें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का शुगर मिल्स में तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड 35% ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। और अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंकों का क्या रोल है, तो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 कहती है कि देयर आर 95,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 363 district credit cooperative societies, 33 state cooperative societies banks in the country, और इन state cooperative societies में टोटल पेड अप कैपिटल है 6,000 करोड़ के करीब और डिपॉजिट है 1.35 लाख करोड़ के करीब। और डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखें तो पेड अप कैपिटल है 21,000 करोड़ के करीब एंड डिपॉजिट्स है 3.78 लाख करोड़ के करीब। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप चैलेंजेस देखो इन सोसाइटीज़ के लिए तो मिसमैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन है। बेसिकली कुछ ग्रुप है जो बाकियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकियों के बेसिस पर फैसला लेता है। एक तो ये बहुत है। कुछ ही सक्सेसफुल एग्जांपल्स जैसे अमूल है, लिज्जत पापड़ है, वेरका है, मगर और ज़्यादा आपको सक्सेसफुल एग्जांपल्स नहीं देखने को मिलेंगी। जा ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जा तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, और इन सभी पर बेसिकली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज का कब्जा रहता है। तो ये फुली डेवलप नहीं हो पाती जो सोचा गया था। इसीलिए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है ताकि एक नया पुश मिले नए जोश के साथ। अगर आप देखें तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इलेक्शंस भी टाइम से नहीं होते हैं और मेंबरों को ज़्यादा पता भी नहीं होता कि क्या मेमोरेंडम है, क्या पर्पस है। कुछ ही गुने चुने लोग इसको चलाते हैं। कई लोग तो अपना फैमिली बिजनेस की तरह ही इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाते हैं। अगर आप देखो तो बेसिकली इसमें ट्रेंड पर्सनल की कमी है। तो ये पर्पस था जो ये मिनिस्ट्री को जो है कोऑपरेटिव वो सर्व कर सकती है अगर ये और इफेक्टिव होती तो। मगर इस स्ट्राइकिंग डाउन से इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का इमेज तो थोड़ी कम हुई है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको री इनेक्ट करके इसको बूस्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल आईडीज़ जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।